Hello guys, so I hope you are all doing great. As I already posted on YouTube post that my PC was not working properly, and I had sent this PC to the concerned repair center. And yeah, due to that reason, I couldn't upload any video further. After last, I think video I have uploaded on the economy part one with respect to current affairs of June month, right? So that's why I really sorry for your inconvenience, and I was working very hard to get my PC as soon as possible, but unfortunately I couldn't make it so easy. But yeah, like now onwards we will uh, I will try to ensure I upload all the videos as soon as possible, right? Firstly, my sole focus would be on completing the June month current affairs, right? Okay, so because otherwise like the July month magazine is about to come, right? So yeah, that's why we need to focus first on completing the current affairs series. Then we will continue on the polity and constitution further, and economy part, and the static and modern history part, environment part, and geography. Okay, respectively that will be the continuous of the plan which I have had made for you. So guys, without wasting any time, let's start. I don't want to make this video much longer for you, right? So I hope this going to very going to have a helpful video and very crisp and crisp contents you are going to watch here, okay. So it will be very time consuming. Otherwise, if you start reading by yourself this Vision IS monthly magazine, then it will be very hard it will be very tough for you. So yeah, I have inserted so much infographics. I have inserted some even UPSC prelims questions as well to make you this to make you feel that this the content that is being prepared by the Vision IS team, that is really exam centric content, by the way. So yeah, you are going to see a lot of infographics, a lot of static part as well. I have inserted in it. Okay, so guys, without wasting any time, let's start. So next जो topic होगा, it would be about कि nowadays you have watching the news and reading the articles with respect to increasing real estate trends in India. So that is basically has been a lot of 10 incidents. So why, what kind of accident हो क्यों रहे हैं, इसका रीजन क्या है? देखो, इसके रीजंस काफी हैं. फर्स्ट होता है डिरेलमेंट, सेकंड कोलिजन, सेकंड एलसी गेट. एलसी में लाइन लेवल क्रॉसिंग जो गेट्स होती हैं, जो कि ये देखो पिक में है ना, जैसे अपन क्रॉस करते हैं ये रहा, ठीक है, इसे बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग गेट. ओके, एंड फायर एंड अदर्स. सो देखो, सबसे मेजर रीजन रेलवे एक्सीडेंट्स का होता है वो होता है डिरेलमेंट. डिरेलमेंट्स मतलब जैसे रेलवे लाइंस होती हैं, ठीक है, ये रेलवे लाइंस है, यहाँ रेल चल रही है, तो रेल अगर बाई चांस यहाँ से पटरी से थोड़ी नीचे उतर गई तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स होता है. तो सबसे ज्यादा 45% रेशियो उसका परसेंटेज है, उसकी वजह से होता है. सेकंड, कोलिजन. दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, या आमने सामने, या पीछे से किसी ट्रेन को गलत पटरी पे चल गई, तो उससे कोलिजन होता है. दैट्स व्हाई, और वी हैव सीन लाइक अ लॉट ऑफ cases of collision nowadays, like in the recent months, right? And that Balasore incident or accident was the biggest one, where like, around 300 people have lost their lives. That is very unfortunate, by the way. But further, next reason behind collision constitute around 8.33%, that is the reason by through which these accidents occur. Next, that is LC gates. I told, no, yeah, sorry, collision is responsible for 12.5%, okay, incidents, and LC gate is responsible 2.08%, and likewise, and fire is also 8.33%. Okay, so that is basic idea, not is useful for the exam perspective. And this is actually, you can say, trend बोल सकते हो ग्राफ के थ्रू, कि अराउंड 2021 2000 के आसपास there was a lot of rail incidents, around 473, and nowadays like the lowest was in 2021-22, where only 11 incidents took place, and now again the incidence has been rising. So that this graph has been showing the, look, this is the trend, has been trend like
since 2000 the number of incidents has been decreasing, but again in 2021-22 since the incident has been increasing. So that is the but basic trend for your conception clarity. सो ये हमने देख लिया कि 75 जो रेल डिरेलमेंट्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, रेलवे जो स्टाफ उसका फेलियर होता है खुद का, ठीक है। अनदर डिरेलमेंट्स होते हैं वो होते हैं इक्विपमेंट फेलियर, मतलब ठीक है कि पटरी में कुछ सही प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व नहीं किया, ठीक है, रिजॉल्व नहीं किया, तो उससे भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जिसे मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो है कवर सिस्टम। I actually last year I was also expecting one question from this part, railway incidents, but unfortunately I haven't seen in the there was no question with respect to railway last prelims question this 2024 UPSC prelims paper. But yeah, I this year 2025 I'm expecting once again the question from this section. So यहाँ जो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कवर सिस्टम हमारे लिए, ठीक है। तो देखो कवर सिस्टम क्या है, एक्चुअली में कोलिजन का रोकने का एक तरीका है, कोलिजन को रोकने का एक सिस्टम है। देखो इसे अलग अलग नाम से बुला सकते हैं आप, देखें इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये हो सकता है कि वो कवर सिस्टम ना पूछ के ये सिस्टम मतलब ये एग्जाम को टर्म दे दे, टेक्निकल टर्म इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम याद रखना है। और इसको अलग और भी बोला जाता है अलग नाम से, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCS और ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ATP, वो तो सेम ही, ठीक है, देख दिए हमने। तो ये दोनों इसके नाम है, टेक्निकल नाम आपको याद रखने। अब हमारे काम की चीज क्या, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जैसे ये ट्रेन, ठीक है, इसके ऊपर कोई लगा हुआ है सिग्नल, मतलब एंटीना वगैरह लगा हुआ है, और ये कोई ट्रेन हो रही है, या मतलब आप ऐसे बोल सकते हो ये ट्रेन है, इसका जो कनेक्शन किससे होता है, GPS से कनेक्ट होता है। ये सैटेलाइट आप रेडियो स्टेशन एंटीना मान सकते हो, इससे इसको पता चल जाता है, GPS के थ्रू इसका सिग्नल जाता है। ये सिग्नल किसको भेजता है, इसको जो GPS जैसे एंटीना को, और ये सिग्नल भेजता है इस सिग्नल पोस्ट को, ठीक है, समझ गए। तो जैसे सेम आप बोल सकते हो जो पटरी पे ट्रैक पे आती है कोई दो ट्रेनें, तो ये क्या होता है, ये एंटीना उसको अपने आप पता चल जाता है कि दोनों ट्रेनें एक जगह आ रही है। तो उनके जो दोनों ट्रेन के जिस पे भी दोनों ट्रेन पे कवर सिस्टम लगा होता है, वहां पे क्या होता है, मतलब ये ट्रैक्स पे होता है बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों ट्रेनों को सिग्नल भेजता है और उन ट्रेनों के ऑटोमेटिक ब्रेक क्या होते हैं, इनिशिएट हो जाते हैं, मतलब उनके ब्रेक ऑटोमेटिक लगने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कोलिजन रुक जाता है बेसिकली। तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ कवर सिस्टम। तो उसमें GPS का भी काफी रोल है। सो देखो, हाँ, ये सेम, मतलब उनको डिवाइस किस पे लगाया जाता है, ट्रेन के ऊपर प्लान किया जाता है, ठीक है, प्लांट किया जाता है। तो और कुछ नहीं इसमें, देखो हमारे लिए काम का ये, तो ये तो समझ में आ गया कि बेसिक काम कैसे। उसके अलावा हमारे टेक्निकल चीजें क्या है, देखो इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्स का यूज किया जाता है। तो ये हमारे लिए जो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये हम एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग यूज होते हैं नहीं होते हैं, और GPS का तो आपको पता है, मैंने बता दिया यूज होता ही है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम या टैग जिसे बोल सकते यूज होता है, और ये मैंने बता दिया आपका प्रोसीजर ऑटोमेटिकली ब्रेक को इनिशिएट कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। इसके साथ ही रेलवे ने कुछ और एफर्ट्स लिए हैं ताकि रेलवे एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। इनमें से एक है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRSK, ये 2017-18 में लॉन्च हुआ। अराउंड 1 लाख करोड़ जो है मतलब डेडिकेट किए गए किसके, रेलवे जो सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए बेसिकली। और देखो क्या क्या एफर्ट्स लिए उन्होंने, GPS बेस्ड फॉग सेफ्टी डिवाइसेस इन्होंने किया है, इम्प्लांट किया है, मतलब ठीक है, रेलवे लाइंस पे। और उन्होंने क्या किया है, मतलब जो सारे अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स होती है ऑन ब्रॉड गेज, देखो पहले हमें पता होना चाहिए ब्रॉड गेज क्या होती है। तो इसके लिए देखो मैंने ये इंसर्ट किया, इसमें देखो आप देखो जनरली 3-4 तरह की होती है। इसमें मैं जनरली देखो सबसे जो बड़ी होती है वो होती है ब्रॉड गेज होती है, जो रेलवे लाइंस दो पटरियों के बीच की डिफरेंस इनमें होती है 1676 मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद होती है मीटर गेज 1000 मिलीमीटर, और उसके बाद होती है नैरो गेज 672
सॉरी 762 मीटर्स मिलीमीटर्स एंड लाइट गेज होती है 610 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है दो पट्टियों के बीच की डिफरेंस। सो ब्रॉड गेज लाइक 16 मिलीमीटर के आसपास मान सकते हो। तो उन सारे जो जिन रूट पे ब्रॉड गेज लगे हुए उन सारे आप बोल सकते हो ट्रैक्स पे उन्होंने अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स, अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग्स का मतलब होता है जैसे कोई जानवर आ गया, ये ट्रैक है, ठीक है, सपोज करो ये पटरियां हैं, यहाँ पे मतलब कोई भी जानवर आ सकता है बीच में, ठीक है। तो उस सबको रोक लिए उन्होंने क्या किया, एफर्ट्स लिए उन्होंने, या तो मतलब कुछ किया है वहाँ पे, ठीक है, फेंसिंग काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो उन्होंने सारे मतलब रूट में किया कर दिया है, कब तक, जनवरी 2019 तक। सो दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, राइट। एक काम की चीज हमारी ये हो सकती है कि काकोडकर कमेटी अपॉइंट हुई थी और रेलवे सेफ्टी से रिकॉर्ड रिगार्डिंग में। तो उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना चाहिए, स्टेटरी बॉडी बनानी चाहिए एक रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी नाम से। बस इतना से याद रखना है, हमारे काम का चीज इतना ही है कि रेलवे स्टेट काकोडकर कमेटी ने बोला है कि रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है। तो आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, रेलवे स्टूडेंट्स का काकोडकर कमेटी का नाम याद रख सकते हो। अगर बाई चांस, ऐसा होता नहीं जनरली कि कमेटी यूपीएससी प्रीलिम्स में सब पूछे, बट बाई चांस लाइक 1% चांस हो भी सकता है बाई चांस, बट तो आप याद रख सकते हैं कि काकोडकर कमेटी ने बोला था कि रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी को स्टेटरी बॉडी बनाई जाए। इसके साथ थोड़ी ग्लोबल प्रैक्टिस आप मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में किसी काम का नहीं है। ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस में देखो क्या आप यूरोप का एक एग्जांपल लिख सकते हो, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, तो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है, उसका आप नाम यूज कर सकते हो कि उसको फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया। अब पहले तो आपको ये मतलब टॉपिक लाइक वर्ड प्रति पता होना चाहिए, ऑफशोर ऑनशोर क्या होता है। ऑफशोर का मतलब होता है, ऑनशोर मतलब शोर मतलब किनारा, मतलब कोई समुद्र है उसके पास का किनारा, किसी वाटर बॉडी के पास का किनारे को बोलते हैं शोर। तो ऑनशोर मतलब शोर के किनारे, मतलब उसके बगीचे कोस्ट पे वो बोल सकते हो। ऑफ शोर मतलब उस पानी के अंदर, समझ गए, बस इतना से याद रखना है। तब हुआ क्या है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो ऑफशोर एरियाज एक्सटेंशन एग्जिस्टिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज रूल्स अभी पास किए हैं, ठीक है। तो रूल्स बनाए बेसिकली किसके थ्रू, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002, इसके थ्रू। तो ऑफशोर एरिया मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑफशोर एरियाज में जो मिनरल्स होते हैं उनके रेगुलेशन रिलेटेड रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किए हैं बेसिकली। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रूल्स वगैरह नहीं इतने, सच ये टेक्निकल मतलब काफी ज्यादा हो जाता है, बट ये काम का नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे इंडिया में ऑप्शनल मिनरल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, बेसिकली ये हमारे याद रखना है। तो ऑप्शनल मिनरल्स होते क्या हैं, बेसिकली वो मिनरल्स जिन्हें मतलब गहरे पानी से निकाला जाता है। बेसिकली कितना गहरा पानी होना चाहिए, वो होना चाहिए मोर देन 200 मीटर्स। बेसिकली इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हो काफी मिनरल्स पाए जाते हैं उस एरिया तक, ठीक है। और उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, मैंगनीज, लाइक ये सब कुछ। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखो, इससे पहले एक सेकेंड हमें ये पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये सब कुछ क्या होता है। तो बेसिकली देखो ये यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशंस जो आपका उन्होंने क्या किया, एक क्लोज बनाया है, कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ द सी, लॉज ऑफ द सी बोल सकते हैं सीधा डायरेक्ट। तो उन्होंने इसको जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उनकी बाउंड्री को कुछ उनको डिमार्केट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। तो सबसे पहले होती है बेस लाइन, कंट्री की बेस लाइन होती है। क्योंकि देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 1 सेकेंड को, देखो जैसे ये हो गया, ये इंडिया है सपोज करो, ठीक है। अब इसका शेप तो एकदम सीधा नहीं है ना, तो बेस लाइन कैसे होती है, ऐसे होती है, एकदम स्ट्रेट होती है। तो यहाँ से जब भी होगा ना तो ये बेस लाइन ऐसे होगी, ठीक है। तो मतलब जो मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, एकदम स्ट्रेट तरीके से यहाँ से बेस लाइन शुरू होगी, ठीक है। अब तो ये तो इंडिया का कोस्ट है, मान लीजिए वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट कोस्ट है। बट ये जो आपको इसको सीधा जो बोल सकते हैं बनाए गए, तो उसको बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब बेस लाइन से काउंट की जाती है डिस्टेंस, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में। तो बेस लाइन से 22 नॉटिकल माइल्स, 22 नॉटिकल माइल्स तक होता है टेरिटोरियल सी, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपका कॉन्टिग्यूस जोन, ठीक है।
बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन EEZ, ठीक है राइट। यहाँ तक कंट्री का हक होता है, मतलब मिनरल्स वगैरह निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाद हाई सीज होता है, ये इंटरनेशनल वाटर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये ज्योग्राफी का ऑब्वियसली पार्ट है। और डीप सी बेड जैसे मैंने बोला 200 मीटर से ज़्यादा अगर डेप्थ है तो वो किस में आ जाएगा, डीप डेप्थ में आ जाएगा, उसको सी बेड बोल सकते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी है। तो बेसिकली हाँ, याद क्या रखना है, हमारा ये जो नेशनल एयर स्पेस है, मतलब ये देखो जो टेरिटोरियल वाटर तक होता है ना, टेरिटोरियल जो वाटर वहां तक हमारा नेशनल क्या होता है, एयर स्पेस होता है। और टेरिटोरियल वाटर के बाद मतलब 12 नॉटिकल माइल्स के बाद इंटरनेशनल एयर स्पेस आ जाता है। मतलब अगर आपको मतलब फ्लाइट उड़ानी है, मतलब यहाँ से निकालनी है ना, तो आपको जो कंसर्न कंट्री होगी वहां से आपको जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहां से आपको क्या करनी पड़ेगी, और वो लेनी पड़ेगी परमिशन निकालने के लिए बेसिकली। और यहाँ पे आप मतलब कोई भी इंटरनेशनल वाटर एयर पे यहाँ पे आपको परमिशन नहीं लेनी है, कोई मतलब कैसे भी निकाल सकता है, ठीक है। अब हमारे लिए काम की चीज ये है कि हमारे इंडिया के कौन कौन लाइक पार्ट में क्या क्या मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, वो भी ऑफशोर मिनरल्स। तो देखो लाइम मड वो गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्ट पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, 1 सेकेंड, देखो लाइम मड है ये, ठीक है। लाइम मड ये देखो महाराष्ट्र एंड ये रहा देखो, ठीक है ना, महाराष्ट्र एंड गुजरात के कोस्ट पे आ गया, राइट। नेक्स्ट बोल सकते हो आप कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड जो होते हैं वो होता है आपके केरला कोस्ट में। देखो कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड ये आप बोल सकते हो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये केरला है, राइट। यहाँ पे केरला है, तो यहाँ पे मतलब इसके आसपास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ग्रेड सैंड पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेवी मिनरल्स प्लेसर्स, वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये काफी एरिया में पाए जाते हैं। जैसे प्लेसर्स इसे बोल सकते हैं सीधा, देखो ये रहा प्लेसर्स मिनरल्स दिख रहा है। तो ये कहाँ का, देखो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आगे यहाँ पे, और यहाँ पे केरला, तमिलनाडु आसपास मिल सकता है, बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉस्फोराइट इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, फॉस्फोराइट का मतलब दोनों साइड मान सकते हो आप, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी बनता है और यहाँ पे भी मान, दोनों साइड मिलता है, ठीक है। फॉस्फोराइट, राइट, ये रहा, मतलब 1 सेकेंड, ये देखो फॉस्फोराइट है यहाँ पे दिखा हुई है, सॉरी, तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट 1 सेकेंड, पॉली मेटेलिक फेरोमैंगनीज इन अंडमान सी, जो लक्षद्वीप सी है, देखो लक्षद्वीप सी कहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। ये जो लक्षद्वीप, उसको लक्षद्वीप सी बोलते हैं। और अंडमान सी यहाँ पे, मतलब ये जो एरिया आसपास लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, उसको क्या बोलते हैं, आपका अंडमान सी बोलते हैं, ठीक है बेसिकली। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है, माइक्रो मैग्नीज, मतलब पॉलीमेट्रिक माइक्रो मैग्नीज पाया जाता है, बस इतना से याद रखना है हमारे लिए। देखो काम की चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो याद रखना आपको, लाइम मड याद रखना है तो, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एरिया है गुजरात एंड महाराष्ट्र को। नेक्स्ट जो हमें याद रखना वो है आपका कंस्ट्रक्शन ग्रेड सॉन्ड, वो केरला कोस्ट पे, ठीक है। प्लेसर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही ये सब कुछ, तो 2 याद रख सकते हो आप बेसिकली, फर्स्ट 2 है ना, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सर रूल क्या है, वो थोड़े रूल्स भी पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा नहीं, उसमें आपको टेक्निकल टर्म में जाना ही नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाएंगे कि क्या होता है, कहाँ से निकाला जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ किस पे अप्लाई होता है, ये सारे मिनरल्स पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट कहाँ से, किस पे अप्लाई नहीं, तो मिनरल ऑयल्स, मतलब जैसे आप ये जो पेट्रोकेमिकल्स निकालते हो जिससे डीजल ऑयल बनता है, ये सब कुछ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स सेम, मिनरल्स स्पेसिफाइड इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957। आपको याद रखना है इंडिया में जो सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे किससे रेगुलेट होते हैं, उसके लिए एक एक्ट है, यही एक्ट है, MMDR इसे बोलते हैं, MMDR बोलते हैं शॉर्ट में से, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशंस एक्ट 1957। तो ये बेसिकली इस एक्ट से सारी चीज रेगुलेट होती है, ठीक है। तो इस रूल्स में जो ये भी ऑफशोर मिनरल्स के लिए जो रूल बनाए गए, गवर्नमेंट इंडिया ने बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें देखो मिनरल्स ऑयल, हाइड्रोकार्बन्स, और जो मिनरल्स आपकी इस MDR एक्ट में के आपके बी पार्ट के फर्स्ट शेड्यूल में उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, बस, ठीक है, बस याद रखना है। और हमारे इसमें कोई काम का चीज ऐसा है नहीं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब FDA हमारे लिए एज सच, इसमें स्टैटिक पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखो कहाँ से कितना मिला FDA, वो सब कुछ हमारे काम का नहीं है, राइट।
सिंगापुर सबसे ज़्यादा इसे मिला है सिंगापुर से, ठीक है, याद रख सकते हो, इतना कुछ है नहीं। बट मैंने इसके लिए स्टैटिक, एक सेकंड कुछ देख लेता हूँ, हाँ यहाँ पे कोई काम का नहीं, ठीक है, ये याद रख सकते हो। ये वैसे भी इंक्लूड किया गया मैंने नीचे भी, जो डायरेक्ट जो आपका DPIIT है वो नोडल डिपार्टमेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ FDA पॉलिसीज के लिए। तो देखो ये स्टैटिक पार्ट हमारे काम का है। तो सबसे पहले FDA होता क्या है और FPI क्या होता है, इनमें डिफरेंस हमारे लिए जानना जरूरी होता है। हमने काफी बार सुना है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली देखो सबसे पहले तो ये है, FDI में क्या होता है कि कोई फॉरेन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, किसी दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्या इन्वेस्ट कर, किस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस और कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बस इतना से याद रखना है। ये रूट वगैरह तो मतलब आप बेसिक उसमें पढ़ोगे ही। एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड RBI, ठीक है, इतना से याद रखना है। RBI का ऐसा जितना रोल नहीं होता है, बट इसका फॉरेक्स एक्सचेंज में ऑब्वियसली काम होता है RBI का, दैट्स वाई उसको बोल सकते हैं आप। एक बोर्ड आप याद रख सकते हो यहाँ से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, बस याद रखना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट जो बोर्ड है वो किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। एक चीज आपको याद ये रखना है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, इनसे अगर कोई FDI आ रही है तो वहाँ पे उसमें आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि हमेशा इसमें डर होता है कि कहीं टेररिज्म एक्टिविटी इनको लाइक प्रमोट वगैरह ना कर दे कुछ डमी कंपनीज बना के, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में हमें ये मतलब प्रोविजन बनाए गए, ठीक है। जनरली ये हमारे कंट्रीज हैं जिनसे क्या होता है सबसे ज्यादा FDI आता है, जैसे मॉरिशस, सिंगापुर, USA, नीदरलैंड, जापान वगैरह, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता हो कि बेसिक की सर्विस सेक्टर लाइक जो हमारे जो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा FDI आता है, वो तो है सर्विस सेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ है बेसिकली, कंप्यूटर हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, ये सब कुछ, ठीक है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट तो मतलब फॉरेनर ही करते हैं, मतलब दूसरे कंट्री के लोग करते हैं किसी दूसरी कंट्री में बेसिकली, बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं ये डिपेंड, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब FDI में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस और असेट्स में करते हैं, जबकि FPI में क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं, मतलब जो शेयर मार्केट वगैरह होता है ना, वहां पे इस पर शेयर खरीद लेते हैं, बस उनका ये काम है। उनको बोलते क्या है, FPI को बोलते हैं फ्लाई बाई नाइट और हॉट मनी, मतलब दोनों बोलते हैं इनको। अब बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। रेगुलेटरी बॉडी FPI का कौन है, सेबी है, ठीक है, याद रखना बस। जबकि FDI जो आपका उसका रेगुलेटरी बॉडी है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बेसिकली FDI जनरली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, काफी सालों का मतलब होता है। शॉर्ट टर्म में क्या, इसमें FPI शॉर्ट टर्म जनरली होता है। और जनरली इन्वेस्टमेंट किस में होता है, FPI में टेंजिबल एसेट, जैसे कुछ रोड बना दी, फैक्ट्री बना दी, हॉस्पिटल वगैरह, इनमें इन्वेस्ट कर ली कुछ कंपनी, ठीक है। जबकि FPI में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, ये सब कुछ सिक्योरिटीज परचेज कर ली, बस इतना सा है। थोड़ा ये फ्लेक्सिबल होते हैं FPI कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, तो लिक्विडिटी वगैरह बनी रहती है, तो इतना सा आपको याद रखना है। और हमारे काम का है नहीं कुछ ऐसा। ये याद रख सकते हो कि FDI किन किस में प्रोहिबिट की गई, जैसे लॉटरी हो गया, लॉटरी बिजनेस है, गैम्बलिंग वगैरह है, क्योंकि लाइक ये हैबिचुअल चीजें हो सकती है लाइक कंट्री के लिए। तो चिट फंड से, बेटिंग है, निधि कंपनीज है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स वगैरह, तो इन सब में क्या है, बैन किया हुआ है इसको FDI को। अब देखो ये इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं, सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही होगा, बेसिक प्रिपेयर कर रहे हो तो, और इकोनॉमी में आप पढ़ोगे FDI का इंपोर्टेंस क्या है। इनिशिएटिव का देखो ऐसा स्पेसिफिक इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है, तो नहीं बोल सकते, और इतना हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और नई अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से काम का है। तो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे जो एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए और प्लस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मेंस तो अभी काफी दूर होगा ना, फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स, राइट। अब कुछ हमारी S&P जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने क्या किया, इंडिया को क्या करे, BB से हटा के थोड़ा मतलब कुछ इधर उधर किया है, प्लस माइनस किया उसका, तो कुल मिला के कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है। इंडिया मीडियम कैटेगरी में आता है, लोअर मिडिल कैटेगरी में आता है। तो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सोवरेन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है। तो होती क्या एजेंसीज, ये एक्चुअली हमने क्या करती है, ये मतलब आप दूसरे इन्वेस्टर्स को ये बताती है
कि जिस कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उस कंट्री की गवर्नमेंट की डेप्ट, मतलब कुछ लोन वगैरह उसको चुकाने की कितनी उसके पास कैपेसिटी है, बेसिकली ये उसका बेसिक होता है। और ये डिसाइड कैसे करती हैं, उसके लिए वो बहुत सारे पैरामीटर्स यूज करती है, जैसे ग्रोथ कितनी उस कंट्री में है, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, गवर्नमेंट का मतलब कर्जा कितना है, शॉर्ट टर्म उसका एक्सटर्नल डेप्ट कितना है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जैसे अभी बांग्लादेश वगैरह में हो रहा है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। या अदर आप बोल सकते हो मालदीव्स में, लाइक म्यांमार में नहीं है। तो ये सब फैक्टर्स काम में लिए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है। यहाँ से हमारे लिए काम का है नहीं है, देखो ग्रेड ए, डबल ए, ट्रिपल ए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, उसके बाद डी सबसे लोएस्ट, जहाँ पे तो कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। मतलब इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मतलब कहने का काम ये है बेसिकली कि इन्वेस्टर्स को बताती है कि आप कौन सी कंट्री में आपका इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ होगा, मतलब उसके वापस आपको मतलब वो बैंकरप्ट नहीं होना है, उसमें आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो कंट्री उसमें कैपेबल है। तो इसमें देखो हमारे लिए इसका स्ट्रेटेजी पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की 7 नहीं, हाँ देखो और एग्जांपल मैं बताता हूँ, एसएपी ने अभी बताया ना, इसके अलावा अदर एग्जांपल्स हैं, मूडी है, फिनटेक है, ये सब कुछ ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है, सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं जो काफी फेमस है, मूडी, फिनटेक एंड एसएनपी, ठीक है, तीनों बहुत फेमस है। अब हमारे इंडिया में भी क्या है, रेटिंग एजेंसीज है कुछ, बेसिकली 7 है, अभी करंटली 7 है, ठीक है। उनमें से देखो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे क्रिसिल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इकरा, ये एक्चुअली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में इसके बारे में। क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च केयर लिमिटेड, एक्वेट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड, ब्रिक वर्क क्रिकेट रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रखा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्फॉर्मिक्स वैल्यूएशन रेटिंग। देखो बेसिकली होता क्या ना, आपको वैसे पता तो चल ही जाएगा, इनमें सब में मतलब एक को छोड़ के ऑलमोस्ट सब में रेटिंग्स वर्ड यूज हुआ है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप इसको क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च याद रख सकते हो, ये थोड़ा मतलब डिफरेंट है। 1 सेकेंड मुझे हाईलाइट करने दो इसको, ठीक है। तो आप ये याद रखना बस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। बाकी ये दोनों पूछ रखे हैं पहले से ही, तो हो सकता है फिर से पूछ लें, ठीक है, इकरा और इसके बारे में, ठीक है, ब्रेक वर्क रेटिंग के बारे में। देखो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था आपके इस रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग से। तो क्या कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ना 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 ना, आरबीआई रेगुलेट नहीं करती, बेसिकली सेबी करती है उसको। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इकरा इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सही बात है। ब्रिक वर्क रेटिंग इज इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, देखो ये आ गया, देखो ठीक है ना, हमने ऊपर पढ़ा है दोनों, इकरा का देखो लिमिटेड बोल रहा है, जब प्राइवेट लिमिटेड बोले मतलब वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली लिमिटेड बोले बस तो मतलब क्या है, वो क्या है, पब्लिक कंपनी हो जाएगी अपने आप ही, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। तो देखो बेसिकली सेबी रेगुलेट करती है, ठीक है, इन क्रेडिट रेटिंग इंडियन जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। और बस इतना से याद रखना, एग्जांपल्स मैंने बता दी, क्रिसिल, केयर, इकरा, समेरा, ब्रिक वर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग रिसर्च, ये सब कुछ, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, देखो ब्रिक वर्क हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो अगर सही से पढ़ के जाते हैं, मतलब इसको भी, ये जो क्या चार्ट कौन सा, हाँ ये चार्ट, इसको आप सही से पढ़ के लाते ना, तो आपका मतलब ये क्वेश्चन सही हो सकता था, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन आप सही करके आते हैं बेसिकली, और आपको पता है ये सेबी रेगुलेट करती है बेसिकली इनको, राइट। नेक्स्ट 1 सेकेंड, कुछ बचा है के पीछे देख लेते हैं। हाँ अब, हाँ यहाँ एक टॉपिक बचा है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है, जनरली अभी आई है। अब हमारे काम की चीज ये है कि इसे पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है बेसिकली, इतना याद रखना है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक करती है। कौन इकोनॉमी क्या कर रही है, हमारे काम का ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी काम का नहीं है, राइट। अब एक रिपोर्ट हो रही है पब्लिक डेट पे, ठीक है, तो इसे पब्लिश किया आपके यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो आपका बॉडी उसमें किया है। रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड ऑफ डेब्ट रिपोर्ट, मतलब डेब्ट रिलेटेड रिपोर्ट है। यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने उसको क्या क्या है पब्लिश किया। बेसिकली हमारे लिए काम का यह है कि वर्ल्ड में क्या डेब्ट है कोई नहीं है, वो हमारे काम का है नहीं। ये सच आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसमें आपको इतना बेसिक आइडिया हो जाता है कि कौन कंट्रीज मतलब क्या फेस कर रही है प्रॉब्लम्स।
ठीक है। तो हमारे लिए काम का इंडिया से रिलेटेड चीजें हैं। तो 2023 में इंडिया का पब्लिक डेट काफी ज्यादा पहुंच गया था, कितना, $2.9 ट्रिलियन पहुंच गया था, और वो अराउंड था आपका 82.7% ऑफ जीडीपी। तो दैट इज वेरी कंसर्निंग फैक्टर बाय द वे, इतना याद रख सकते हैं आप। अब ग्लोबल लेवल पे कुछ एफर्ट्स किए गए ताकि डेप्ट क्राइसिस को मतलब कुछ कंट्रीज बाहर निकल सके। उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, जो मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूट्स उन्होंने लिए हैं, जैसे आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इनिशिएटिव लिया है, जिसे बोल सकते हैं हेवीली इन डेप्ट पुअर कंट्रीज को, मतलब थोड़ा क्राइसिस से बाहर निकालने, जो कंट्रीज बहुत ज्यादा पुअर हैं और बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई हैं उनको, जैसे सोमालिया वगैरह हो गया, इन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज बेसिकली, जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी है। उसके बाद आपका जैसे हमने अभी ऊपर देखा ही है, ठीक है, यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो आपकी बॉडी है, ठीक है, उसने भी एक इनिशिएटिव चलाया है जिसे बोलते हैं डेप्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम। इसके साथ ही ग्लोबल सोवरेन डेप्ट राउंड टेबल, ये एक्चुअली आईएमएफ ने लॉन्च किया था, किसकी हेल्प से, वर्ल्ड बैंक और इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे इसको इनिशिएट मतलब काफी सपोर्ट मिला था। तो बेसिकली देखो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेसिकली, ठीक है, मैचिंग में पूछा जा सकता है, तो आप याद रह थोड़ा सा मतलब बेसिक, थोड़ा मतलब लॉजिक याद रख सकते हो कि जो राउंड टेबल, जैसे आप बोल सकते हो टेबल, टेबल मतलब मीटिंग हुई है कहीं पे, तो हमारी इंडिया की आपकी G20 प्रेसिडेंसी के टाइम पे मीटिंग हुई, इतना आप मतलब इतना याद रख सकते हो, राइट। हेविली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, आपने देखा होगा आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का काफी, जैसे वर्ल्ड बैंक जनरल डेवलपमेंट के लिए लोन देती पुअर कंट्रीज को, आईएमएफ डेप्ट री फाइनेंसिंग के लिए देती है, ठीक है, उन सब चीजों के लिए, श्रीलंका को भी दिया था, पाकिस्तान को दिया है, वो सब कुछ। तो आप इतना याद रख सकते हो, और पीछे जो बचा डेट मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस सिस्टम, वो यूएनसीएटी मतलब वो उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, उसका बच जाएगा। अब हमारे लिए फर्दर रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट है, ये आईएलओ ने पब्लिश किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन कितने लेबर है हमारे काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिकली आप याद रख सकते हो, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती है जनरली आईएलओ पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब ट्विस्टिंग कर्व एक कुछ आया है न्यूज में, इतना ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं किसने कौन दिया क्या है, थोड़ा याद रख सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन चीजें होती हैं। तो ट्विस्टिंग कर्व क्या बोलता है कि एक लिमिट के बाद अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ भी जाए ना, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ नहीं पाती एक पॉइंट के बाद। जैसे ये जीडीपी पर कैपिटा है, ठीक है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो देखो एक पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ के बाद मतलब यहाँ अगर आपकी जीडीपी काफी अच्छी है तो बहुत लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ दी जाती है, थोड़ी अगर बढ़ रही है तो, बट ये हो जाएगी सपोज करो, ठीक है, उसके पॉइंट के बाद आपकी बहुत कम, इसके बाद जीडीपी पर कैपिटा अगर थोड़ी बढ़ेगी तो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी, बट यहाँ इस पॉइंट के बाद जीडीपी चाहे कितनी भी बढ़ जाए पर कैपिटा, बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आपकी नहीं बढ़ पाएगी। बस पिस्टन कर्व इतना सा है, आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब और जीडीपी पर कैपिटा के बीच के रिलेशंस को शो करता है, और एक पॉइंट के बाद जीडीपी कितनी भी हो आपकी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं बढ़ पाती है आपकी किसी भी कंट्री की बेसिकली। अब आरबीआई ने कुछ एक प्रोजेक्ट नेक्सस जोन किया बेसिकली, ये हमारे लिए थोड़ा काम का है कि नेक्सस पूछ सकता है कि कौन सा मतलब टर्म यूज, नेक्सस क्या है, प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, तो हम उसे मतलब टेररिज्म वगैरह से कुछ उससे रिलेटेड मान सकते हैं कि मतलब नक्सलिज्म से कुछ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये एक मल्टीनेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इससे क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं वो इजी हो जाते हैं बेसिकली। वो क्या होते हैं, उनको जो डोमेस्टिक, जैसे हमारा इंडिया का यूपीआई है या कुछ फ्रांस का कुछ उसका आपका बोल सकते हैं कोई वहाँ का कोई लोकल पेमेंट सिस्टम होगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, तो ये नेक्सस क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है, यूपी और जो फ्रांस का जो पेमेंट सिस्टम होगा ऑनलाइन, उनको कनेक्ट करने का काम करता है नेक्सस। बस इतना से याद रखना है, और आरबीआई ने इसको ज्वाइन किया है, बस इतना से याद रखना है। और सबसे पहले इनिशिएट किया था आपका इनोवेशन हब ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल आपके सेटलमेंट्स, इसने स्टार्ट किया था, बस इतना से याद रखना है। और अननेसेसरी डिटेल्स दिए, कोई नहीं पूछने वाला आपको, ये काम का नहीं कोई भी। आरबीआई ने काफी इनिशिएटिव लॉन्च किए, जिससे
आपकी डिजिटल एक्सेस बढ़ जाए लोगों की, इंक्लूजन बढ़े, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो बढ़वाने के लिए तो ये कुछ मतलब इनिशिएटिव लिए हैं हमारे, वो पूछ सकते हैं बाई चांस, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो भी होते हैं सारे पूछते हैं, राइट। तो एक उन्होंने परवा पोर्टल लॉन्च किया है। इसका बेसिकली काम ये है कि एक कुछ वेब बेस्ड ऐसा पोर्टल बनाएंगे जिससे क्या होगा, लाइसेंस वगैरह देना हो ना, सीधा लाइसेंस यहाँ से ले सकते हो आप डायरेक्ट, मतलब आपको ऐसे डायरेक्ट ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए बनाया गया बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। और उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, मोबाइल ऐप बनाया है, किसके लिए, डिटेल डायरेक्ट पोर्टल। मतलब इसके थ्रू आप क्या कर सकता है, मतलब कोई किसी इंसान के पास मोबाइल है, उसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इधर उधर बेचनी खरीदनी है, तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकता है, जो आरबीआई ने बनाया है फिलहाल अभी रिसेंटली। एक फिनटेक रिपोजिटरी, मतलब फिनटेक मतलब फाइनेंशियल इन टेक्निकल सेक्टर दोनों जो होते हैं, उसके लिए रिपोजिटरी मतलब डाटाबेस के लिए कुछ बनाया उन्होंने, डाटाबेस बनाया एक, ठीक है, बोल सकते हो। तो एक साथ कंप्रेहेंसिव डाटाबेस बनाया उन्होंने। नेक्स्ट, वेरिएबल रेपो रेट। देखो, रेपो रेट मतलब क्या होता है, रेपो रेट मतलब आरबीआई जो बैंक्स को लोन देती है, और लोन पे जो चार्ज लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है, उसे बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, आरबीआई बैंकों से जो लोन लेती है उस पे जो इंटरेस्ट होता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बेसिकली ये नया कॉन्सेप्ट है वेरिएबल रेपो रेट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आरबीआई को क्या करना है, मार्केट में लिक्विडिटी मतलब ज़्यादा करनी है, इन्फ्यूज करनी है, बट बैंक्स उधार लेना नहीं चाहते आरबीआई से, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आरबीआई से लेने में, क्योंकि बैंक्स को भी पैसा देना पड़ता है ना, ऑब्वियसली बैंक्स को क्या देना पड़ता है, आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई के पास एक ऑप्शन है, वो आरबीआई बैंकों को क्या बोलेगी, आप एक काम करो, आप है ना हमें क्या करो, वेरिएबल रेपो रेट पे आप है ना हमें इंटरेस्ट दे दो, उस रेट पे, मतलब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है ना उसके हिसाब से आप क्या कर दो, हमें वो दे दो। मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब मार्केट सपोज करो ऊपर गया नीचे गया, तो उसमें रिस्क ये बना रहता है, ठीक है। तो उसमें बैंक्स को ये फायदा है कि आप ज़्यादा आप मतलब उसको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है, बेसिकली मार्केट के हिसाब से देना पड़ता है, तो ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करो 9% अभी इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट का, ठीक है, और मार्केट मतलब थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है, तो बाकी मार्केट्स मतलब जो इंस्टीट्यूशन आपको 3% में लोन दे रही है, तो बैंक्स को क्या होगा, नुकसान होगा ना इसमें, इस केस में। तो बेसिकली बैंक्स ये रिस्क लेना नहीं चाहती कि भाई बाई चांस, तो उससे क्या होगा, अगर आपने वेरिएबल रेपो रेट पे लिया पैसा, तो आपके पास हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जिस मार्केट जो हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है, राइट। तो इसमें फायदा हो जाता है थोड़ा, मतलब बैंक्स थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है लोन लेने में। तो बेसिकली एक ड्यूरेशन आप पता कर सकते हो, 1 डे से लेकर 14 डेज तक होता है जनरली, और इसमें कुछ नहीं है। एक और होता है वेरिएबल रिवर्स रेट रिवर्स, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विडिटी को मतलब सक करने के लिए, बेसिक उसको जो भी है एक्सेस लिक्विडिटी को आप करने के लिए, कम करने के लिए इसका यूज होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसे बोलते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। देखो ये किसने किया, क्या है, देखो एसबीआई ने कुछ किया, अपनी लंदन ब्रांच से पैसा इतना वगैरह उठाया, जो भी है हमारे काम का नहीं, हमारे काम का ये जो टर्म है वो काम का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट होती है, बेसिकली इसमें ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक है। किसके लिए होती है, वो होती है यूएस डॉलर, जो आप डिनोमिनेट बॉन्ड्स वगैरह होती हैं, उनसे क्या होता है कि इमिडिएटली आप मतलब वो कर सकते हो, मतलब केस ले सकते हो। जैसे कोई आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, सिंपल सा बॉन्ड है, और आपको ओवरनाइट उसको सेल करना है, तो उसमें ओवरनाइट जो इंटरेस्ट रेट होगी, उसको वही जो कॉन्सेप्ट है उसे ही बोलते हैं आपका सिक्योर ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि बैंक केस बोरो करती है इंडिविजुअल और अदर बैंक से एक रात के लिए, बस याद रखना, बैंक्स क्या करती है, केस बोरो करती है किससे, क्योंकि बैंक्स के पास क्या होता है, बैंक्स के पास यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डॉलर वगैरह ये होते हैं ना, बॉन्ड जो आप बोल सकते हैं, लोन वगैरह होते हैं, या डेरिवेटिव्स मतलब लोन बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, इनको बेच के इंडिविजुअल से पैसा लेना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसको यूज करते हैं। एक अदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पैम्प एंड डंप स्कीम।
हमारे लिए काम का ये है कि सेबी ने क्या किया, कि सेबी ने कुछ नहीं किया, वो छोड़ो। हमारे काम का ये है कि इस पंप एंड डंप स्कीम का मतलब क्या है, क्योंकि पूछ सकता है वन लाइनर आपका उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या है, ये एक मैनिपुलेशन का तरीका है। इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली क्या करते हैं, मतलब जानबूझ के कोई स्टॉक है उसकी प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, किसके थ्रू, फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या फायदा किसको होता है, फायदा जिसको, मतलब सपोज करो प्राइस बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, मतलब कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपए का है और उसे इन्फ्लेटेड कर दिया आर्टिफिशियली, ऐसी खबर बना दी कि अच्छा ये मतलब कंपनी बहुत ग्रो करने वाली है, तो आप ऐसे करो इसके शेयर खरीद लो, मतलब ये हवा मार्केट में फैला दी वहां पे, शेयर मार्केट में। तो क्या कहोगे, जो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो है ना उससे जो उस कंपनी के शेयर खरीद मतलब परचेज करने लगे, तो उससे क्या होगा, उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। जैसी डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई, डिमांड का सिंपल सा है कि सप्लाई कम हो जाएगी, तो उससे प्राइस का बहुत ज़्यादा बढ़िया हो मतलब बढ़ जाएगी प्राइस। अभी जैसे हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही अडानी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज पे यही मतलब एलिगेशन है कि उन्होंने ना आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे, पंप एंड डंप स्कीम किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल स्टॉक्स के उसको मैनिपुलेशन से रिलेटेड, प्राइस मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट, अभी सेबी ने रिसेंटली क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तो कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस को थोड़ा अमेंड किया है। इसमें क्या होता है बेसिकली, किया क्या है कि जो पहले हमें पता होना चाहिए होता क्या है। इन्वेस्ट देखो, जो होते हैं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, मतलब वो होते हैं इन्वेस्ट, एक तरह से म्यूचुअल फंड काइंड ऑफ होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली ये करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे टोल रोड, ऐसे ब्रिज वगैरह बना दिया कुछ, ठीक है, उन पे जैसे टोल नाका मतलब कुछ लगा दिया टोल रोड्स पे, ये सब कुछ करते हैं, इन पे इन्वेस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली जैसे किसी कंपनी ने रोड बनाई, ठीक है, रोड बना के टोल नाका दे दिया, अब ये क्या है, ये कंपनी रोड मतलब बेचने चाह रही किसी को, और ये कुछ मतलब इन्वेस्टर है, ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब इसको परचेज करेंगे मिलके। तो इन दोनों को सही प्राइस देने के लिए ये उन्होंने अमेंड किया, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, ठीक है। आप याद रख सकते हो, कुछ नहीं इसमें, और कुछ बराबर प्राइस, बढ़िया प्राइस देने के लिए। और ये दोनों किसके अंडर कवर है, ये सरफाइस एक्ट के अंडर कवर है, याद रखना बस इतना सा हमारे काम का चीज है कि सरफाइस इनवाइटिस, इनको जो क्या बोलते हैं, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनको बोलते हैं इनवाइट्स, ठीक है, याद रखना है। और स्पॉन्सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती रोड्स वगैरह, जैसे ब्रिज बना दिया, ठीक है, और जो ये इनफिट्स मतलब जो टोल नाका वगैरह वसूलते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इनके लिए ये रिकॉग्नाइज हुए आपके सरफाइस एक्ट में। इनकम कैसे कमाते हैं, टोल के थ्रू, रेंट वगैरह, वही सब कुछ मैंने बता दिया ऊपर। अब नेक्स्ट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। अब रिसेंटली क्या है कि सेबी ने एक कमिटी अपॉइंट की है अंडर उषा थ्रोट, तो वो किससे रिलेटेड की है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। हमारे लिए इस तरह टर्म काम का है कि क्या इसका मीनिंग क्या होता है। बेसिकली क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का मीनिंग होता है कि ऐसी एंटिटी जो क्या करती है, आपके ट्रेड से रिलेटेड जो सिक्योरिटीज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रेड होता है उसको सेटल करती है। मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया सपोज करो, ऐसा मतलब एक बोल सकते हो, डायरेक्टली डिस्प्यूट बोल सकते हो, उसे सीखे कि सेटलमेंट कर देती है आपका इजीली, ट्रेड्स वगैरह सिक्योरिटीज में जो होता है, तो उसको बस बोलते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो मतलब एक बोल सकते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का किससे रिलेशन है, आपका स्टॉक मार्केट से रिलेशन है, बस इतना से याद रखना है, और कुछ काम का नहीं हमारे। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ये टर्म काम का है हमारे लिए। तो ये होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनसे अपनी वैल्यू मिलती है, जो मतलब ऑलरेडी जिनसे होती है, जैसे अंडरलाइंग एसेट मतलब होता है कमोडिटी सिक्योरिटी करेंसी इंडेक्स। मतलब सपोज करो कोई करेंसी है जैसे डॉलर है, ठीक है, अब डॉलर डॉलर के थ्रू वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी फिक्स कर लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है, बस इतना से याद रखना है, सिंपल सा है, ठीक है।
और कुछ नहीं, अपना मतलब वहीं से उसी से पैसा मतलब उसके हिसाब से पैसा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंड रनिंग, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि जो आपके सपोज करो कोई शेयर वगैरह है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब जैसे बजट आने वाला है, ठीक है, और उन्हें पता चला कि इस सेक्टर में क्या होने वाला है, कुछ बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है, या उसके मतलब वो ग्रो मतलब बूस्ट होने वाला सेक्टर, तो वो क्या करेंगे, जो मतलब इन्वेस्टर है मतलब जो उसका फायदा उठाएंगे, वो क्या करेंगे, उस जैसे उन्हें पता चल जाएगा, मतलब ऐसा कि बजट आने वाला अभी आया नहीं है और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं, बट कहीं कैसे भी करके उनके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, ठीक है, तो वो सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसे बोलते हैं फ्रंट रनिंग। तो बेसिकली इंडिया में ये इलीगल है, ठीक है, और सेबी इसे रेगुलेट करती है, बस इतना से याद रखना है। अब एक रिपोर्ट आई है अगेन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर, ये FAIO ने, जो यूएन का बॉडी एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसने पब्लिश की है। हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का है कि एक FAO ने एक विजन इंट्रोड्यूस किया, ब्लू ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये बस याद रखना है, वन लाइनर याद रख सकते हैं आप। और जो फिशरीज वगैरह पता ही है, एक मरीन आपके बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को किसमें उसका कवर किया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, और ये काम का नहीं हमारे बिल्कुल भी। हाँ, ये याद रख सकते हो, मतलब इसमें देखो फूड वेस्टेज जो होता है आपका, पोस्ट हार्वेस्ट फूड वेस्टेज जो होता है उसको, उससे रिलेटेड ये बेसिकली रिपोर्ट है। तो अराउंड 30% जो फूड प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में वो कभी कस्टमर तक पहुंचता ही नहीं है, ये FAO की रिपोर्ट है, ठीक है, इतना याद रखना। इंडिया में तो उससे भी ज्यादा होता है ऑब्वियसली लॉस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए हैं, वो हमारे लिए काम के थोड़े, जैसे आप बोल सकते प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम, किसके लिए, ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को किसमें आपको प्रमोट करने के लिए, ताकि वो फूड स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, बस इतना याद रखना है। इसके बाद PM किसान संपदा योजना, ये बेसिकली रिलेटेड आपकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनको कहाँ मतलब इस्टेब्लिश करें, जो प्रोडक्शन एरियाज हैं, सपोज करो महाराष्ट्र में अगर कॉटन वो हो रही है, ठीक है, कॉटन गुजरात और महाराष्ट्र में, तो जहाँ जिस एरिया में हो रही है सबसे ज्यादा, उसी के पास क्या करें, फैक्ट्री फूड प्रोसेसिंग आपकी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लें। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या देती है, इनिशिएटिव देती है PM किसान संपदा योजना के अंडर। नेक्स्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसमें वही है, डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट, बस कोऑपरेटिव को थोड़ा वही ग्रेन स्टोरेज के लिए फैसिलिटी देती है, थोड़ा मतलब इंसेंटिव देती है। अब लास्ट जो इकोनॉमी का हमारा टॉपिक वो है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इसमें हमें अब काफी अच्छा फील होगा जान के कि हमारे 9 इंडियन पोर्ट्स को टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट्स में जगह मिली है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये किसने एस्टेब्लिश किया, बेसिकली ये जो इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक एंड SCP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने एस्टेब्लिश किया है, और बाकी हमारे काम का नहीं है, चाइना का फर्स्ट आया है, वो हमारे काम का नहीं है। काम का है कि इंडिया का मतलब UPSC को ना पोर्ट, आपने देखा होगा पोर्ट से रिलेटेड काफी उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, तो UPSC का मतलब फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है पोर्ट से रिलेटेड। तो इंडिया के कुछ पोर्ट्स हैं जिन्हें पोजीशन मिली है, फर्स्ट विशाखापट्टनम पोर्ट है, उसके बाद मुंद्रा जो प्राइवेट पोर्ट है, अभी अडानी उनके अंडर आता है, और ये कुछ पोर्ट है छोटे छोटे, मतलब इनको टॉप 12 मतलब ये पोजीशन मिली, 9 पोजीशन। अब याद आप थोड़ा हमारा स्टैटिक पोर्शन देख सकते हैं, जैसे ये कुछ पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट हो गया गुजरात में, मुंबई पोर्ट हो गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, मारमुगा गोवा में हो गया, मंगलूर न्यू मंगलोर कर्नाटका में, कोचिन केरला में, वियो चिदम्बरनार ये आपका तमिलनाडु में हो गया, चेन्नई और कामराजार इनौर जिसे बोल सकते हैं, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो गया, पारादीप उड़ीसा में हो गया, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, ये तो अपन मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ते ही हैं। ये बेसिकली ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का मिक्स पार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे लिए काम का ये है कि थोड़ा स्टैटिक पार्ट याद रख सकते हैं
कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट के थ्रू ये सारे कवर किए गए हैं दो कैटेगरीज में। एक तो मेजर पोर्ट, दूसरा माइनर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, माइनर पोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, बस इतना याद रखना है। करेंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, और अभी 13 मेजर पोर्ट बन रहा है, जिससे वधभवन पोर्ट महाराष्ट्र में बन रहा है, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। तो करंटली 12 मेजर पोर्ट्स हैं, वो हमारे लिए काम के बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, हमने जो इंडियन इकोनॉमी, जो आपका इकोनॉमी पार्ट है सेकंड, उसको आज पूरा कवर कर लिया है। आई होप दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।